Okay, dear students, in the previous lecture, we learned how to describe motion by graphical method. We learned about distance time graph and velocity time graph. Today we are going to use that knowledge of graphical method in deriving the three equations of motions. Now we are going to solve many numericals in this particular chapter. All those numericals will be based on three formulas. ये जो तीन फॉर्मूला है उसमें से किसी फॉर्मूला का यूज करके हम वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो ये तीन फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो दीज थ्री फॉर्मूलाज एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड आर नोन एज इक्वेशंस ऑफ मोशंस. ओके, इक्वेशंस ऑफ मोशंस तीन कौन से हैं, फिर हम उसको ग्राफिकली डिराइव करेंगे. तो सबसे पहले इक्वेशंस. फर्स्ट इक्वेशन इज v is equal to u plus at. This particular equation is helpful to us when these things are given and one of them is missing. Means it gives relationship between v, that is final velocity, u, that is initial velocity, a, that is acceleration, and t is time taken. तो जब हमको कोई सम सॉल्व करना है जिसमें s यानी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं पता, तो उस सम को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? we will use the formula v is equal to u plus at. So generally this particular equation is used to solve the numericals in which the value of distance traveled s is unknown. The second equation we make use is s is equal to ut plus 1 half at square. S is equal to ut plus 1 by 2 at square. This equation is generally used when the value of final velocity v is not known. Okay, so s is equal to ut plus 1 by 2 at square. And third equation of motion is 2as is equal to v square minus u square. This equation is used when time t is not known. So depending upon the data which is given in your numerical, you can use either equation 1, equation 2 or equation 3 to solve the numerical. Okay, so once again, all the numericals that we are going to solve from now onwards will be based on three formulas. These three formulas are known as equations of motion. Which are the equations of motions? तो इन तीन फॉर्मूला को, इन तीन इक्वेशंस को आपको बाय हार्ट लर्न करना है. और वो फॉर्मूलाज हैं v is equal to u plus at, s is equal to ut plus 1 by 2 at square, and 2as is equal to v square minus u square. Again, किस टाइम पे किस फॉर्मूला को यूज करना वो हम जब जब सम सॉल्व करते जाएंगे तब तब जो गिवन पार्ट होगा उस हिसाब से विल आइदर यूज वन ऑफ दिस थ्री equations to solve the equations. Now if you know the equations, you should also know the terms of the equations. So here I have given you the explanation of terms of equation. तो इन जो equations है, इन equations में जहां पे मैंने u को यूज किया है, तो u means initial velocity. u represents initial velocity. Similarly, v will represent final velocity. a will represent acceleration. T means time taken, and small s is used for distance traveled. So once again, we are going to use these three equations extensively for solving the numericals. You should know these three equations by heart. Now we are going to learn how to derive these three equations, that is v is equal to u plus at, s is equal to ut plus 1 by 2 at square, and 2as is equal to v square minus u square graphically. Okay, so dear students, as I said previously that today we are going to learn how to derive the three equations of motions using the graphical method. So now we are going to derive the first equation, that is v minus u is equal to at. Now before I move in solving, let us understand the graph, because we are going to derive this equation using graphical method. तो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, it starts its motion from A.
ए से लेके बी तक मोशन करता है, तो ये पॉइंट ए से लेके बी तक जो है वो मोशन है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, तो जब वो ऑब्जेक्ट एट पोजीशन ए पे है तब उसकी जो बिगिनिंग की वेलोसिटी है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। सो दैट वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय u, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है एट दैट टाइम इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u। its velocity goes on increasing, this is velocity versus time graph। तो y एक्सिस पे हमारे पास वेलोसिटी है, यहाँ पे हमारे पास टाइम है, तो फाइनल पोजीशन हुई b, तो जब फाइनल पोजीशन पे उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको कॉरेस्पॉन्ड किया यहाँ पे आई फाइनल वेलोसिटी, सो दैट फाइनल वेलोसिटी इज v। सो फिर से समझेंगे, वी आर टेकिंग अ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। y एक्सिस पे हमारे पास है वेलोसिटी टेकन इन मीटर पर सेकंड, x एक्सिस पे हमारे पास टाइम विच इज टेकन इन सेकंड। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जीरो से जर्नी स्टार्ट नहीं कर रहा है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी कुछ वैल्यू है, तो मैंने जर्नी को जीरो से स्टार्ट नहीं किया, थोड़े ऊपर से स्टार्ट किया। सो दिस इज द पॉइंट ए एंड जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। जब जर्नी स्टार्ट हुई उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, तो ये जो हमारी वेलोसिटी हुई दैट इज इनिशियल वेलोसिटी u। तो यहाँ पे मैंने जो OA है उसको लिया है इनिशियल वेलोसिटी u। सिमिलरली जब वो ऑब्जेक्ट पहुंचता है b पे तो वो उसकी फाइनल पोजीशन पे हुई, फाइनल पोजीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी व्हिच इज डिनोटेड बाय v। सो हियर यू कैन सी दैट दिस OE दैट इज इक्वल टू BC इज फाइनल वेलोसिटी v। तो याद क्या रखना है आपको, ये जो OA है वो है इनिशियल वेलोसिटी u और ये जो BC है वो है फाइनल वेलोसिटी v। फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। अभी a से b तक जाने में जो टाइम लगा उस टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय t। तो a से लेके d तक जो डिस्टेंस हुआ दैट रिप्रेजेंट्स टाइम t। तो इफ AD इज इक्वल टू t, तो जितना AD है उतना OC है, तो इफ AD इज t दैट मींस OC इज आल्सो इक्वल टू t। यानी कि सबसे पहले आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे आपको y एक्सिस पे लेना है वेलोसिटी टेकन इन मीटर पर सेकंड, x एक्सिस पे लेना है टाइम टेकन इन सेकंड, कोई पॉइंट A लेना है उसकी जर्नी लेनी है टिल B, ठीक है। देन यू नीड टू जॉइन EB एंड AD। आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू, you need to take that this OA is the initial velocity because the object is starting its journey from point A. So OA that is initial velocity u, B is the final point, so BC will represent the final velocity which is represented by letter V, and this AD and OC both represent time taken by the object to reach from A to B। A से B पहुंचने में जो टाइम लगा, क्योंकि टाइम हमने इस एक्सिस पे लिया है, तो यहाँ पे पोजीशन A, यहाँ पे पोजीशन B, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज टाइम t। सो यू कैन से दैट AD इज t, जितना AD है उतना होगा OC, तो AD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू t। इतना आपने लिख लिया, फिर डेरिवेशन हो जाएगा बहुत बहुत इजी। कैसे होगा, तो आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो BC है फ्रॉम ग्राफ इट इज एडिशन ऑफ टू पार्ट्स BD प्लस DC। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे जो BC है दैट इज BD प्लस DC, लेकिन DC के लिए कोई सपोजिशन नहीं है, लेकिन जितना DC है उतना ही कितना है OA है, तो OA के लिए हमारे पास सपोजिशन है U। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, BC इज इक्वल टू BD का तो मैंने BD रखा, DC को मैंने किसमें चेंज किया OA। क्यों किया, क्योंकि जितना DC है ये एक रेक्टेंगल बनेगा, तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड सेम होती है, तो जितनी वैल्यू DC की है उतनी वैल्यू OA की है। तो फिर से मैंने स्टार्ट कहां से किया, दैट BC is sum of two parts that is BD plus DC. Instead of DC I will substitute AO. So I have written that BC is equal to BD plus OA. तो यहाँ पे हो गया BD plus OA। अभी सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, BC की वैल्यू क्या है V, तो instead of BC I put V is equal to BD को हमने BD रखा है, so is equal to BD plus OA। OA की वैल्यू क्या है U, तो हमारे पास हो गया V is equal to BD plus U। Now I will make this BD subject of formula। तो जब मैं BD को subject of formula बनाऊंगा तो U आएगा ऑपोजिट साइड पे, तो मुझे मिल गया BD is equal to V minus U। ठीक है, इतना करने तक हमारे 75% डेरिवेशन हो गया। अब हमको
जो फॉर्मूला लानी है वो एक्सेलरेशन के लिए लानी है। तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या है? हाउ डू यू फाइंड एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ए इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन ए इज चेंज इन वेलोसिटी माइनस टाइम टेकन। तो यहां पे देखोगे तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? तो पहले वेलोसिटी ये थी, फाइनल वेलोसिटी ये है, इन दोनों का माइनस करोगे तो आएगा बीडी, यानी चेंज इन वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड एज बीडी अपॉन टाइम टेकन कितना है? तो टाइम टेकन है एडी। सो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू बीडी अपॉन एडी, बट जितना हमारा एडी है उतना ही हमारा ओसी है, तो इंस्टेड ऑफ एडी आई विल पुट ओसी। अब तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया है। A is equal to BD, but what is BD? BD is V minus U. यहाँ पे लिखा V minus U upon OC. OC की वैल्यू क्या है? OC की वैल्यू है टाइम टेकन T. So यहाँ पे आ गया T. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V minus U is equal to आएगा 80. That is our equation number 1. That is we derive equation number 1 using graphical method. Dear friends, ये जो तीन इक्वेशंस है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली इन एनी स्कूल, इन एनी एग्जामिनेशंस दे आस्क टू डिराइव एनी टू ऑफ दोस इक्वेशंस फॉर अ 4 मार्क क्वेश्चन। सो अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेरी प्रॉपर्ली। वी आर डिराइविंग द मोशन इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। इसी स्लाइड के बिगिनिंग में मैंने आपको तीन इक्वेशन सिखाए थे, उन तीन इक्वेशन को हमको डिराइव करना है यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो जब आप ग्राफिकल मेथड से वो तीनों इक्वेशंस डिराइव करते हो तो तीनों में ग्राफ तो यही आएगा। तो ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है और ये जो तीन वैल्यूज लिखी हैं दैट विल बी एप्लीकेबल टू डिराइव ऑल दीज थ्री इक्वेशंस। तीनों इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए ये ग्राफ सेम रहेगा, ये वैल्यूज भी रहेगी सेम। तो सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ में क्या करेंगे? We'll draw a y-axis and x-axis. Y-axis represents velocity in meter per second. X-axis represents time in second. फिर हम क्या करेंगे? किसी एक इनिशियल वेलोसिटी पे हम ऑब्जेक्ट ए को रखेंगे और उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करके ले जाएंगे तक b. So object is performing its motion from a to b. a से लेके b तक उसका मोशन हुआ। तो ये जो OA वाला पार्ट है वो हुई उसकी इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय u। यहाँ पे मैंने लिया है OA is equal to u। ये जो BC है ये उसकी हुई फाइनल वेलोसिटी v, तो मैंने BC को रिप्रेजेंट किया v। ये A से B तक जो जर्नी होती है वो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज AD। सो AD रिप्रेजेंट्स टाइम t। जितना AD है उतना ही OC है। सो आई कैन टेक AD is equal to OC is equal to t। तो ये ग्राफ और ये जो तीन वैल्यूज दी वो हम तीनों इक्वेशंस को डिराइव करने में यूज करेंगे। तो जब हम सेकंड इक्वेशन को डिराइव करेंगे और थर्ड इक्वेशन को डिराइव करेंगे इतने तक का सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है। अब जब हम फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करते हैं तब आप लोगों के सबसे पहले ये सबसे बड़ी साइड दैट इज BC। BC is sum of two sides. Which two sides? So from graph we can say that BC is equal to BD plus BC. नेक्स्ट स्टेप में BC की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे OA को, तो हमारे पास होगा BC is equal to BD plus OA। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो BC है तो BC की वैल्यू क्या है? V। तो इंस्टेड ऑफ BC मैंने यहाँ पे रखा V is equal to BD को मैंने BD रखा, प्लस का मैंने प्लस रखा। OA क्या है? OA की वैल्यू है U, तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया U। फिर मैंने सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला किसको बनाया? मैंने सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाया BD को। तो BD is equal to V minus U। इतना करने के बाद आपको कौन सी फॉर्मूला लानी है? आपको फॉर्मूला लानी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ये एक वेलोसिटी है, ये भी एक वेलोसिटी है, इन दोनों का डिफरेंस यानी BC में से अगर AO निकालोगे तो क्या आएगा? डिफरेंस। तो जितना A हो उतना ही CD है, तो जब BC में से CD निकल गया तो क्या बचा? BD, यानी चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू BD। तो A इज इक्वल टू BD अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना है? AD। तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू BD अपॉन AD। जितना AD है उतना ही हमारे पास है OC। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू BD के लिए हमने क्या डिराइव किया है? BD के लिए हमने डिराइव किया है V minus U।
So A is equal to, instead of BD I am putting V minus U upon OC. OC की जगह हम लेते हैं time taken, which is denoted by T. So now our equation is A is equal to V minus U upon T, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन है V minus U is equal to 80, जो कि है हमारा इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिराइव करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 यूजिंग द सेम ग्राफ्स. अगेन एक बहुत चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर दो इक्वेशंस डिराइव करने हैं तो ये ग्राफ दो टाइम ड्रॉ नहीं करने, ये ग्राफ एक ही टाइम ड्रॉ करना है, क्योंकि इक्वेशन 1 डिराइव करोगे, इक्वेशन 2 डिराइव करोगे या इक्वेशन 3 डिराइव करोगे, तीनों में ये ग्राफ सेम रहेगा और ये जो तीनों वैल्यूज है, दैट इज BC is equal to V, OA is equal to U and AD is equal to OC is equal to T, ये तीनों में सेम टू सेम रहेंगे. सेकंड और थर्ड इक्वेशन में थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे, क्योंकि उसमें हम डिस्टेंस ट्रैवल S को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना के डिराइव करेंगे. उसमें ये ग्राफ भी यही रहेगा, वैल्यूज भी यही रहेगी, वो हम लर्न करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.